Thank you very much. So today we're going to start the objective of communication. Okay, objective of communication. Uh, can I start? Yes, sir. Okay. Now, the first objective of communication is the building awareness. The first objective, please, Madhusmita, Sarita, or Prerna, whosoever, whenever you think that the voice is not clear or the voice is not clear to you, then please tell me. I'll stop there. Okay. Yes, I'll sir. wait for the Okay, sir. एक्चुअली ये 5G बना के ना बहुत दिक्कत हो गया. पहले 4G ठीक था, 5G का यहाँ टावर मिलता नहीं है, अननेसेसरी 5G सिम लेना पड़ा, फायदा कुछ नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत हो रहा है, हर जगह ये प्रॉब्लम है. ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, द फर्स्ट वन इज बिल्डिंग अवेयरनेस. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बिल्डिंग अवेयरनेस. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस? अवेयरनेस का मतलब होता है मेक पीपल सिंसियर अबाउट द थिंग. Through your communication uh, you can make your observer, or you can say you can make your people aware. Okay, aware of anything else. Okay, this one is one of the most important and the first objective of communication, that is how to create a building awareness, how to create an awareness. You all are working in a, maybe in some companies, or rather you will going to work in some other companies. So the first priorities will be given to you is that try to make your client more and more aware of any product you are selling, or anything else you are selling, or whatever things you are doing. Okay, this is the first priority the companies will going to give it to you. And awareness is one of the most important objective in that. Okay, now if the communication is not appropriate, if the communication is not appropriate or not up to the mark, then this will going to take place, or this will not going to take place in a clear way. सपोज आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो, तो आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करोगे? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ. एम आई ऑडिएबल? मधुस्मिता, सरिता एंड प्रेरणा? Yes, sir. ओके, So, थैंक यू. बीच बीच में ये सर बोलते रहोगे ना, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हो या फिर मेरा वॉइस क्लियर है. तो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास विथ यू. नाउ सपोज whatever the contents uh, or whatever the syllabus you are having in your MBA or MCA, whatever the stream you are, अगर इस स्ट्रीम में आप लोगों का में अगर सिलेबस दिया गया है, और एक फैकल्टी के तौर पे अगर मैं अच्छे से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, बार कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, मैं उस चीज को समझा नहीं पा रहा हूँ, उस लेवल में आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, देन आफ्टर ऑल ये मेरे लिए भी फेलियर है, और सबसे बड़ा फेलियर आपके लिए भी होगा. मेरे फेलियर की वजह से आप भी फेलियर हो जाएंगे. वाई? बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं है, और मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, सही नहीं होने के माध्यम से, मैं अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ. ओके, एम आई क्लियर? तो बीइंग अ फैकल्टी, आप कोई भी फील्ड में देख लीजिए, बीइंग अ फैकल्टी or being a neta, mantri, or whatever else, communication is one of the most important part. So, if the communication is appropriate, if the communication is proper, then you can create any awareness, or you can make any subject or any topic, you can make your clients a clear one. Okay, the first objective of communication is to make awareness or building awareness. Don't worry, I am going to send you all the notes of this, okay, so that it will be much clear to you. Now, the next one is providing information or educating. Another objective of communication is just provide proper, appropriate information, or try to educate your clients. Okay, try to educate your clients. Why I am using this word clients every time? As because definitely being in any stream, especially whatever the stream, your MCA or MBA, whatever the streams you're going to have, you need to work or you need to deal with your clients only. Okay, you need to deal or you need to work with your clients only. So it's better to improve your communication as quickly as possible. How to improve your communication? इसका एक सबसे अच्छा
उदाहरण है, ये जरूरी नहीं है कि यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, यू नीड टू बी वेरी मच qualified in English, you must be very much good clarity, good control on your English. No, it's completely wrong. It's a completely wrong. You can, English is important, but one of the most important factor is on whichever the languages you are talking now, you must be have control on that particular language. आप जो भी भाषाएं में बात करना चाहते हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जर्मन हो, लैटिन हो, तेलुगु, तमिल, बंगालीज, व्हाटएवर द लैंग्वेज, आपको उसमें पकड़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तभी आप उस चीज को ये अपने क्लाइंट से या फिर आप अपने जो भी आपको सुनना चाहते हैं या भी जो आपका जो रिसीवर है, उसके पास सही मैसेजेस, सही इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन। और ये करेक्ट इंफॉर्मेशन कैसा होगा? आपका अच्छे कम्युनिकेशन के माध्यम से। और दूसरी बात, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अदरवाइज आप उस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे कम्युनिकेशंस के बारे में नहीं पता, कम्युनिकेशंस क्या होता है, कितनी तरह का कम्युनिकेशंस होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, यही मुझे अगर नहीं पता, तो मैं, आप बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? तो सबसे जरूरी बात है कम्युनिकेशन से भी जब सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि खुद को एजुकेट करना। एम आई क्लियर, मधुस्मिता, सरिता एंड प्रेरणा? हेलो, Yes, sir. whosoever Sir. joining me? Okay, Yes. very good. Okay, now the one of the most another important part is creating interest. Another important part is creating interest in yoga. देखो, कम्युनिकेशंस के माध्यम से आप दूसरों के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन तो ऑनलाइन में होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देता हूँ। सपोज आप एक शॉप में जाइए, एक दुकान में जाइएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक दुकान में जाइएगा। आप जब दुकान में जाइएगा, देखिएगा कुछ कुछ दुकानदार जो होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से कस्टमर के साथ डील करते हैं, बहुत वेरी प्लेजेंट वे, वेरी गुड वे। इसके और एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। सपोज शायद मैंने इसका एग्जाम्पल पहले दिया था, मैं दोबारा इस चीज को, ये कंटेंट आया है इसलिए मैं वो एग्जाम्पल देता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल डेफिनेटली देता हूं। आप कभी एक चीज गौर कीजिएगा, कभी एक सरकारी बैंक में जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू गो टू पंजाब सरकारी बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये सब बैंक में जाइएगा। कस्टमर कैसे डील करते हैं देखिएगा। सबसे पहले ये चीज देखिएगा, हाउ दे डील विद द कस्टमर। सपोज यू आर आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यू आर आस्किंग फॉर सैलरी स्लिप, सॉरी, यू आर आस्किंग फॉर सेविंग स्लिप, चेक बुक्स एंड ऑल। तो देखिएगा किस तरह से वो बातचीत करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट विद। नाउ उसके ऑपोजिट आप एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या फिर कोई ऐसा प्राइवेट बैंक में चले जाइएगा। देखिए कितना अच्छा, हाउ ब्यूटीफुल वे दे डील विद द कस्टमर्स, they handle with the customers is exceptionally well. How they behave with the customer. Suppose any old person going to any private bank, how they behave with the customer. First of all, they going to make you a seat. First of all, they going to make you an arrangement just to take the seat over here, sir, please. एक क्लाइंट अटेंडेंट की तरह एक वहां पर एक होता है क्लाइंट अटेंडेंट। बैंक्स, आप जब प्राइवेट बैंक में जाओगे, एक क्लाइंट अटेंडेंट, एक पोस्ट खाली करवाया गया, एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, जहां पर जो भी है वहां पर बैंक में काम करते हैं, वो क्लाइंट हैंडल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you just enter into the bank na, they first receive with a warm welcome. They're going to say good afternoon, good morning, whatever the situation is. Okay, according to that, they will going to, first of all, they're going to make you an arrangement. Sir, please be seated, take your seat. अब बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। आप जब उस प्रॉब्लम को बताइएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे सोल्यूशंस देगा। अगर उसके पास सोल्यूशंस नहीं भी होगा ना, आप देखिएगा कितना अच्छे से वो डील करेंगे। सॉरी सर, आप 10 गाली दे के आ जाइए, फिर भी वो हंस के झुक के, सॉरी सर, एक्सेप्शनली, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसके इसी वजह से ना, आज आप देखिएगा इन सब सरकारी बैंक के मतलब छोड़ के आप देखिएगा इन सब बैंक्स में ज्यादा से ज्यादा इंसान जो होता है, जिसका सैलरी अच्छा है, जो मतलब करंट अकाउंट ज्यादा डील करते हैं, यहाँ पर जाके पैसा जमा करते हैं।
This is the fact. Okay, because of their communications, because of their interest. Okay, तो दूसरी बात है, ये क्यों होता है, ये क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर ये इंटरेस्ट ले और और ज्यादा इंटरेस्ट ले इस सब चीजों में, उनके बिहेवियर की वजह से इन सब इंटरेस्ट और ले, 10 बार सोचेंगे कि मैं चलो मैं आज नहीं वही बैंक में जाके मैं ये करता हूँ। सेम थिंग आप कोई दुकान में चले जाइए, देखिए कस्टमर कितना अच्छे से डील करते हैं, अगर वो दुकान में आप 10 बार उस दुकान में ही जाइएगा, वहीं बगल में एक सेम दुकान है, सेम सामान बेच रहा है, सेम प्राइस लेवल है, सब कुछ सेम है, लेकिन कस्टमर हैंडल उतना अच्छी तरह उनको आता नहीं है, कम्युनिकेशन उतने अच्छे से डील करने नहीं आता है, ठीक है, बार्गेन्स करने नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या है, कस्टमर वहां पर थोड़ा सा कम जाते हैं। Why this happen? This all happen because of because of communication, because of in creating an interest. Okay, so these are all the tricks. Okay, through the communications you can create interest, you can create awareness, you can create motivations, you can create support. Communication is one of the most important and a big asset in today's sector. Am I clear? In today's generation, communication is one of the most important asset, I can say. ये चीज आपको अभी नहीं पता चलेगा, बिकॉज यू आर ऑल इन द मे बी इन द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स। आप जब आप इस चीज को थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाइएगा, आपका जब कैंपस प्लेसमेंट होगा, कैंपस सिलेक्शन होगा, अगर आपके कॉलेजेस में तो डेफिनेटली होता होगा, तब आपको ये चीज का नॉलेज होगा कि जब आपसे एचआर बात करेंगे, हाउ दे टॉक विथ यू, हाउ दे निगोशिएट विथ यू, हाउ दे डील विथ यू, हाउ दे कम्युनिकेट विथ यू, ईच एंड एवरी पॉइंट्स they will going to deal with you. Okay, so at that particular point of time you will going to understand that how to communicate. और communication सबसे अच्छी बात है, आप अपने से दूसरों से बातचीत करते रहिए, just go on talking, but not nonsense way of talking. A good healthy communication is very very important. आजकल तो बहुत आपको प्ले स्टोर्स में बहुत सारा ऐसा लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारा साइट्स दिया हुआ है, जहां पर जाके आप फॉरेन क्लाइंट से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फॉरेन क्लाइंट फीडबैक किया हुआ है, इंग्लैंड, आप अगर अमेरिकन एक्सेंट्स में बात करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टॉक विद एन अमेरिकन एक्सेंट्स, इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लैंड एक्सेंट्स, इफ यू वांट टू टॉक इन यूएसए एक्सेंट्स, lot of accents are there, you can talk according to with your accents. Okay, you can improve your accents, you can improve your communication non-stop, 5 to 10 minutes you can communicate it through your English. Okay, so these are the facilities now it's been available in your mobile. Okay, you can develop in this way your communication. Previously these are the things not have been there. Okay, so these are the things not there. Now internet has gone up very far, internet has gone very far, scientific things are gone very fast, science are developed well, lot of these sites are there, lot of what you can say apps are there, you can download those apps, you can talk of your own, आप बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट से आप डील कर सकते हो, बात कर सकते हो, आप अपना कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। Am I clear to everyone? प्रेरणा, मधुस्मिता and all? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, कोई डाउट है इसमें? जितना मैंने समझाया अभी, बक किया मैंने, जितना No, बका sir. इसमें है कोई डाउट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद है प्रोमोटिंग द ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस। ये जो पॉइंट्स है, इट्स फॉर द सेल्स पर्सनालिटीज, जो भी सेल्स में काम करते हैं, द पर्सन्स हु आर वर्किंग ऑन द सेल्स, टारगेट ओरिएंटेड बेसिस होता है, जिनका टारगेट रहता है, उसके लिए ये सब चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना अच्छा कम्युनिकेट करोगे, उतना ही आपका ब्रांड्स जो होगा वो अच्छा प्रमोट करेगा। ओके, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस जो है वो और एलिवेट होगा। अगर प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड प्रमोट हुआ तो आपका प्रमोशन पक्का, आपका फिर जो फाइनल में मतलब ईयर एंडिंग में जाके जो आपका अप्रेजल होता है वो फिर बढ़ जाता है। ओके, तो कम्युनिकेशन कितना बड़ा हथियार है देखो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, इसका दो मतलब निकल सकता है। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स मीन्स जहां सेक्टर में आप लोग काम करने जाओगे या जहां आप काम करोगे इन फ्यूचर, वहां पर अगर आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करते हो तो आपका जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब पैसा नहीं होता है, रिसोर्स के पैसा के अलावा रिसोर्सेस का मतलब होता है आप जो भी काम करते हो या जो भी टारगेट आपको दिया जाता है, वहां आप उस चीज को डेवलप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका रिसोर्सेस क्या है?
आपका रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स आपका रिसोर्सेस क्या है, मुझे अपना कम्युनिकेशन डेवलप करना है, ये आपका रिसोर्सेस है, तो आप उस चीज को भी डेवलप कर सकते हो कम्युनिकेशंस के माध्यम से। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफरिंग बेटर कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशंस का मतलब होता है तालमेल बना के चलना। ओके, ऑफिस में ऑफरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन, सपोज यू आर वर्किंग इन द ऑफिस एटमोस्फेयर, आप लोग ये सब स्कूल स्कूल में नहीं, आप जब ऑफिस में जाओगे या फिर आप जब कोई जॉब में जाओगे तो ये चीज देखिएगा कि आप जितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाओगे ना, आपके कॉलीग्स आपका एनवायरमेंट उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी ऑरा। ओके, सो आप जितना अच्छा बेटर कोऑर्डिनेट कर पाओगे among your bosses, to your HR, to your clients, to your what you can to your friends, to your colleagues, उतना ही अच्छा गुड रिजल्ट्स कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपको मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका अपना सबसे अच्छा डेवलपमेंट होगा। दीज आर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो एक और पॉइंट है, यू कैन क्रिएट योर ओन एफिशिएंसी थ्रू द कम्युनिकेशंस, प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी। उसके बाद देखो नाइन्थ नंबर पॉइंट जो है, हम एक सोसाइटी रिलेटेड पॉइंट है, क्रिएटिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द वर्कर्स, बिटवीन द फैमिलीज एंड ऑल्सो द बिटवीन द रिलेशनशिप्स। इट्स देखो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है ये सिर्फ आपके ऑफिस के रिलेटेड नहीं है, जॉब रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपका फैमिली रिलेशनशिप्स जो होता है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप जो होता है, वो भी अच्छा डेवलप करता है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लाइफ हो। एम आई क्लियर? तो इस चीज को कोऑर्डिनेट मीन्स बैलेंस बनाने के लिए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट, बिटवीन द वर्कर्स एंड द फैमिली रिलेशनशिप, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का। द लास्ट वन इज फॉर यू, जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो पहले से आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिया हो, देखो लास्ट पॉइंट वही दिया है, जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स। फाइनली वेनेवर आप जब ऑफिस से घर आओगे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जब अप्रेजल मिलेगा, आपका सैलरी जब इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको जब प्रमोशन मिलेगा, आप जब घर आओगे, जब सुकून से एक जगह कोई नहीं रहेगा, आप सुकून से अपने बैठ के फिर दिमाग से सोचिएगा कि मेरा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की वजह से, मेरा कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से, मेरा मोटिवेशंस की वजह से, मेरा ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज की वजह से मैं आज इस लेवल पे या इस मुकाम पे पहुंचा हूं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ योर कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। दिस सीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस सीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली आपको फिर वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जॉब सेटिस्फेक्शन कहा जाता है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस इज द जॉब सेटिस्फेक्शन। आपका जब सब सीज जो होता है, सब सी, जैसे कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कर्टसी, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, कंसाइजनेस, ये जो 7 सीज है ऑफ कम्युनिकेशन, आप जब इस चीज का इस्तेमाल करोगे और आपको जब प्रमोशंस होगा, आपका अप्रेजल होगा, फाइनली आप देखोगे you will feel really very relaxed, you will be happy, you will be have a very good job satisfactions. Okay, so these are the objective of communications. Now tell me, every one of you sitting here listening to my communication, कोई डाउट है? No, sir. Whoever listening to me, नो सर। क्या बात करूं, एक भी डाउट नहीं निकल रहा है? ओ गॉड, आप लोग सही में सुन रहे हो क्या? एक्चुअली sir. सर, पक्का बताओ तो। हाँ सर, कैसे? सर एक्चुअली में हमारी जो क्लास हुई थी ना, उसमें तो क्या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तक हो चुका था। वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको रिपीटेशन करता हूं, क्योंकि हाँ सर। इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं ना, उसमें थोड़ा सा इसका टच है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिकैप्चुलेट किया जाए, ताकि जो नेक्स्ट वाला जो लेवल है
उसको हम इसके साथ मैचअप करके और आगे बढ़ जाएंगे। दैट्स वाई, क्योंकि इसका मिलता जुलता बहुत सारा पॉइंट्स है। एम आई क्लियर? दैट्स वाई। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यस। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, तो प्लीज टेल मी कोई डाउट है? बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज स्ट्रेट मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं जो भी एज्यूम करके क्वेश्चंस बताऊँ ना, पक्का वो एग्जाम में आ जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन कैसा आएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। ओके, 10 मार्क्स। आप लोगों का 10 मार्क्स का शायद रहता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो ये सब आता नहीं है। मैक्सिमम ये सब क्वेश्चन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आएगा। एम आई क्लियर मधुस्मिता एंड ऑल whosoever listening to me? ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो यू नीड टू राइट डाउन योर पॉइंट्स। अगर वहां पर क्वेश्चन मार्क डालने के बाद एक्सप्लेन वर्ड यूज कर देता है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी ब्रीफली according to your merit, then only you will going to get a marks. And the streams you are studying, you have whatever the streams you have taken ना, इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, इलेबोरेट करना। आंसर्स को जितना अच्छा आप एक्सप्लेन कर पाओगे, इलेबोरेट कर पाओगे, उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, मैं दोबारा एक बार 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस को रिपीट कर देता हूं। एम आई क्लियर? बिकॉज इसके मिलते जुलते बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बाद हम जब जाएंगे ना, तो इसका बहुत कुछ रिलेटेड रहेगा। तब हम उस चीज को और आगे, मतलब विदाउट एनी एक्सप्लेनिंग प्रॉपर, मतलब हम उसको एग्जाम्पल के तौर पे लेके हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है? ठीक है मधुस्मिता, एक बार सुन लो। यस या सर। फिर अच्छा ठीक है, तो अच्छा ठीक है, एक बार समझा देता हूं। व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट आर द 7 इंपॉर्टेंट C's ऑफ कम्युनिकेशन? C स्टैंड फॉर कैट। ओके, तो व्हाट आर C स्टैंड फॉर कैट नहीं, C मतलब C का मतलब जो होता है C फॉर कम्युनिकेशन। व्हाट आर द 7 कम्युनिकेशन स्किल और व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, सो दैट इट इज वेरी क्लियर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस और व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस। whenever you are going to appear for your interview na, your interviewer will going to ask this type of things. Okay, your HR will definitely going to ask these things. What are the 7 principles of communications? Can you tell me, Madhusmita, or whosoever listening to me? आपको एक एक चीज बोलना पड़ेगा, उसमें से बोलेगा व्हाट इज कर्टसी, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कर्टसी इन कम्युनिकेशंस। कैन यू टेल मी मधुस्मिता? इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मधुस्मिता बता सकती हो व्हाट इज कर्टसी इन कम्युनिकेशन? सर किसी भी, जब आपको मतलब विद पोलाइटनेस के साथ आंसर करना। मधुस्मिता तुम्हारा जियो है क्या ना एयरटेल है? सर वाईफाई बीएसएनएल। बीएसएनएल में इतना अच्छा मतलब ये हो रहा है, और मैं अननेसेसरी बेवकूफ बन गया एयरटेल 5G लेके। देखो मेरा हालत, मैं मोबाइल को टांग के पड़ा रहा हूँ। आई एम जस्ट हैंग माई मोबाइल ऑन अ टॉप जस्ट लाइक अ टावर। वेरी बैड। ओके चलो, what is courtesy in communications? Can you tell me? सर आंसर करना या फिर रिप्लाई करना किसी भी चीज को विद पोलाइटनेस। ओके, किसी भी चीज को आंसर करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे मधुस्मिता, क्योंकि ठीक नहीं हुआ पॉइंट्स। courtesy का मतलब तो पोलाइट होता है, फिर उसमें पोलाइटनेस क्या मतलब क्या? हेलो? सर जो अप्रोच रहेगा अपने तरफ से वो विद पोलाइट, थोड़ा सा जेनरस नेचर के साथ, विद अ स्माइल ऑन अ फेस, और उस वे से आंसर करना, कम्युनिकेट करना इनफैक्ट। Madhusmita, if you're going to get a questions like this, you're going to answer in this proper way. Tell me. That's a courtesy means you need to answer very politely with a have a smile on your face. Is this the way you're going to make an answer? Tell me. नो सर। Okay, that's why I'm telling you ना, मुझे मालूम था ये होगा. Okay, I am going to explain it from the first. Okay, what are the 7 C's of communication first of all, or what are the 7 principles of communication? ये चीज कम्युनिकेशन में आप इस चीज को यूटिलाइज जितना अच्छा करोगे, आपका कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा होगा। इफ यू एवर लिसन द स्पीच ऑफ, हाउ कैन आई से, शशि थरूर, आई कैन गिव यू द बेटर एग्जांपल।
Then Shashi Tharoor. Shashi Tharoor is a politician. He is a leader from Congress. Okay, शशि थरूर नाम सुने होंगे. कम्युनिकेशंस में उनका जैसा कम्युनिकेशन शायद ही कोई करता होगा. He is a very eminent personality in this politician world, and also he is a great speaker. The words he is using, a very sophisticated word he is using whenever he is pronounced. And look at his accents. आपको अगर शशि थरूर का कुछ स्पीच मिलेगा, you just listen to him. What a many American accents, the way every pronunciations he is pronouncing is absolutely perfect. एक सुर भी इधर उधर नीचे नहीं होता. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो फॉरेन में जाके डिग्री लिया है कि नो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग. But he has practiced a lot. I was listening one of the interview of Shashi Tharoor, and when somebody asked him that, sir, with such a clarity, with such a exact word, how can you pronounce? Then he tell in an interview that, sir, it's just because of my practice. And one of the most important part is that in his school days, the teachers used to teach them phonetics. Okay, the teachers used to teach them the phonetics. Phonetics means sound system. Okay, where to make your sound a little bit lower, where to make your sound a little bit higher. Pitch. What is called? That is called pitch. Pitch. Okay, exactly. Whenever he used to talk over the microphone, you will get mesmerized by listening his skill. You will get mesmerized while listening his voice. देखिएगा बहुत ज्यादा कम बोलते हैं वो, उसमें ज्यादा बोल, लेकिन आप उनका हिंदी सुनिए, इतना माइल्ड, इतना सॉफ्ट, इतना स्वीट वॉइस है उनका. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते ईच एंड एवरीथिंग को. ओके, तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर किसी को दिखना है कम्युनिकेशन में कैसा होता है, देन यू नीड टू लिसन थ्रू. इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट. कोई भी आप यूट्यूब में जाओ, लिसन द स्पीच ऑफ शशि थरूर. ओके, इट्स माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक. Another example I can give you, our Indian cricketer, Mr. Dependable, that is Rahul Dravid. If you listen to Rahul Dravid, Saurav Ganguly, okay, you will feel that how they communicate. Just listen their tone of their voice. Look at the pitch of their voice. किसी भी चीज को ना 1 मिनट वो कन्विंस कर सकते हैं, इतना पावर है उनका वॉइस में. Okay, this is one of the most important thing. Another example I can give you, Mr. Amitabh Bachchan, sir. I can give you the example of Mr. Amitabh Bachchan. इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर किया गया है. इंडियन के जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सरकारी वाला एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो पोलियो ड्रॉप्स हो, चाहे वो जल निगम हो, चाहे वो स्वच्छता के विषय में हो, आप देखिएगा, यू जस्ट लिसन द स्पीच ऑफ अमिताभ बच्चन. द क्लैरिटी, द कॉन्फिडेंस, the speech delivery, the communication, the skill, the tactics, each and everything is perfect. तो ये 4-5 एग्जांपल्स कम्युनिकेशंस के लिए दिया जाता है. वन ऑफ द फर्स्ट में शशि थरूर, नेक्स्ट में राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, थर्ड में अमिताभ बच्चन. इनसे बड़ा स्पीकर शायद आज इंडिया में कोई नहीं. Is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first one is the 7 principles of communication में कहा जाता है. The first one is completeness. Completeness का मतलब क्या होता है? Completeness का मतलब होता है whatever information you are sharing with your colleagues, with your clients, with the people, okay, with your students, the information should be complete information. आप अपना स्कूल डेज में जाइए पीछे, आप स्कूल डेज में पीछे जाइए, शायद ये चीज आपके स्कूल डेज में भी होते होंगे. बहुत सारे टीचर्स जो है, फैकल्टीज जो है, स्कूल बोर्ड में पढ़ाते हैं डेफिनेटली. उसके बाद वो चीज आधा अधूरा छोड़ के रख देते हैं. वो क्या करते हैं, दोबारा आप जब उससे सवाल करते हैं कि सर ये तो बाकी रह गया है, बोला नेक्स्ट दिन मैं आपको आके पढ़ा लूंगा. उसके बाद कुछ टीचर्स मैंने ये ऑब्जर्व किया है, दूसरे दिन आके नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते, वो वहीं छोड़ देते. या फिर आप
कोई भी ऐसा देखिएगा अपने लाइफ में या अपने सोसाइटीज में या फिर अपने दोस्तों में, फैमिलीज में, कि बहुत सारे ऐसा है जो अपना कम्युनिकेशंस को कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं। जो भी बात बोलते हैं आधा अधूरा बात बोल के, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दे के छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुझे खबर मिला था, आई गॉट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग विथ योर क्लाइंट्स, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग विथ योर पीपल, ऑलवेज ट्राई टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन विथ 100% एक्यूरेसी। आप तभी अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। यू कैन देन कैच योर कस्टमर्स। ओके, जितने भी सेल्स ओरिएंटेड बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी सेल्स ओरिएंटेड जॉब्स होते हैं, सबसे पहले उनको कहा जाता है कि आप सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दीजिएगा वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि कस्टमर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चंस करे तो आप फंसे नहीं। इसलिए जब भी देखिएगा कोई भी जो मैक्सिमम सेल्स में क्या होता है, आपको पहले एजुकेट किया जाता है, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग्स दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज आप अपने क्लाइंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए। क्यों? अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आप देते हो, आपके क्लाइंट आपके पास दोबारा चल के वापस नहीं आएगा। अरे यार नहीं, उसके पास जाने से उसके पास इंफॉर्मेशन पूरा नहीं मिलता, चलो मैं दूसरे के पास चला जाता। यू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है वो कंप्लीटनेस होता है। एम आई क्लियर? Yes, sir. सरिता एंड ऑल? Yes, sir. ओके, कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. Okay. Then the next, okay, the next one, excuse me, the next one is concreteness. Concreteness का मतलब क्या होता है? Whatever the information you are sharing, it should have a solid based information. Concrete का मतलब होता है solid. Whatever the information you are sharing with your clients, whatever the information you are giving, suppose मैं आप लोगों को communications के बारे में information दे रहा हूँ, तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देना है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ वो देना है। जैसे मैंने अभी जो जो एग्जांपल्स आपके सामने पेश किया, शशि थरूर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, मिस्टर अमिताभ बच्चन सर, ये पक्का सबूत लेके ही मैंने आपको दिया है, ये पक्का सबूत लेके मैंने दिया है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पटाखे फूट रहा है, आप लोग डरिए मत। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग, व्हाटएवर you are sharing, it should have a concrete information. You should have a very concrete information, means solid evidence के साथ, solid proof के साथ हमको information देना चाहिए। The next one is courtesy. Courtesy means a very polite way. Whenever you are giving information orally or in written communication, you should be very much polite towards your customers. Okay, very much polite towards your clients. Okay, rude word, harsh word, okay, ये सब यूज नहीं करना चाहिए बेसिकली। अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं चिल्ला के पढ़ाऊँ, जबरदस्त डांट के पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग धीरे कुछ तो सुनोगे, उसके बाद आप लोगों को बुरा लगेगा, यू विल फील वेरी बैड, क्या सर है यार, जबरदस्ती बिना मतलब का विदाउट एनी रीजन डांटते रहते हैं। उसके बाद क्या होगा, बोलेगा नहीं, बोले नहीं सर, ये सर ठीक नहीं है, ये अच्छे से बिहेवियर ही नहीं आता है उनको। बिकॉज एक मैन्स बिहेवियर स्पीक दैट वेदर ही इज अ परफेक्ट और नॉट। एक इंसान की बिहेवियर जो होता है वो सारा कुछ बयान करता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, कल्चर क्या है इसका, इसका मोटिवेशन क्या है, ये कैसा कम्युनिकेशन कर सकता है। बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो कहा जाता है कर्टसी इन कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जब क्लाइंट को कुछ लेटर्स लिखोगे, ईमेल करोगे, आप कुछ सॉफ्ट वॉइस, सॉरी नॉट सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट जो राइटिंग्स होता है, बिजनेस लेटर आप लोगों का है, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट, उस तरह से प्रेजेंटेशंस करना होता है। जब आप क्लाइंट से बातचीत करोगे, whenever talking with your customers, whenever talking with your client, you need to be very much soft and polite towards your customer, then only they will going to attract you. Then the next one is correctness. Correctness का मतलब क्या होता है, whatever the information you are sharing, have a correct information, not wrong. गोल मटोल घुमा फिरा के इधर उधर की बातें लेके आंसर्स मत किया कीजिए। ओके, ये क्या होता है, एक बार दो बार चलो सही है, लेकिन बार बार अगर इस तरह गोल मटोल घुमा फिरा के इधर उधर
अननेसेसरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, तो ये फिर आपका रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। एम आई क्लियर? द नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रिसाइज वे में इंफॉर्मेशन देना। इतना ज्यादा एक चीज में मत बोलो कि बोर हो जाए, एक ही टॉपिक पे आप दिन भर चल जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, वो गलत हो जाता है। कंसिडरेशंस का मतलब होता है वेरी मच अप्रोप्रिएट टू द परफेक्ट, एंड कॉन्साइजनेस का मतलब होता है सेम, कुछ अलग है। कॉन्साइजनेस का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन आप दीजिए परफेक्टली दीजिए विद एन प्रॉपर यूजिंग ऑफ एग्जांपल्स। ओके, so these are the 7 important C's of communication or 7 important principles of communication. Am I clear? Yes, sir. So, Yes, sir. Okay. Any doubt so far? no, sir. No doubt. Oh God. Okay. Next one is the types of communication. The next one, the important part is the type of communications. What are the types of communication? The first important type of communication is written communication. The first important type of communication is written communication. The next one is oral communication. The next important part of the, excuse me, छींक आ रही है, इतना जोर यहाँ पर, मतलब क्रैकर्स यूज कर रहे हैं ना, फायर क्रैकर्स यूज करना है, घर में धुआं घुस रहा है, अरे बाप रे। ओके, द नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज रिटन कम्युनिकेशंस। रिटन कम्युनिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 5 to 6 कैटेगरीज। देखो, नंबर 1 होता है मेमोज, नंबर 2 होता है रिपोर्ट, नंबर 3 होता है बुलेटिन्स, नंबर 4 होता है जॉब डिस्क्रिप्शंस, नंबर 5 होता है एम्प्लॉय मैनुअल्स, नंबर 5 ईमेल राइटिंग, नंबर 6 होता है इंस्टेंट मैसेजेस जो हम लोग व्हाट्सएप में यूज करते हैं। ये व्हाट्सएप में जो हम लोग यूज करते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं, तुरंत मैसेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजेस। तो रिटन कम्युनिकेशंस में इतने सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। मेमो जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, बुलेटिन, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एम्प्लॉय मैनुअल्स, email writing, instant messages. Okay, then comes to the next is oral communication. Oral communications क्या होता है? Oral communications are subdivided into 2 categories: informal oral communications और formal oral communications. Informal oral communications में क्या होता है? जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जैसे मैं आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूं ओवर द टेलीफोन। उसका बाद होता है डिस्कशन दैट टेक प्लेस एट बिजनेस मीटिंग्स। आप लोग जब जॉब करोगे ना, तो आप लोग का बहुत सारा मीटिंग्स होगा क्लाइंट के साथ या आपके एचआर के साथ, मैनेजर्स के साथ। तो ये सारा जो स्पीकिंग्स होता है, ये सारा जो कम्युनिकेशंस होता है, ये सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस कहा जाता है। ओके, these are called informal oral communication. Am I clear? Is it clear Yes. to you? मैं इस सब का Yes, sir. नोट आपको दे दूंगा, तो समझाना फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशंस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन आता है। नेक्स्ट वन इज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। थर्ड वन इज डिस्कशन इन ए बिग बिजनेस मीटिंग्स, एंड द लास्ट वन इज हाँ हो गया, 3 है, 3 ही है। Then come to the next one is formal type of communication. The next one is formal type of communication. Formal type of communications क्या होता है? Presentations at business meeting. बिजनेस मीटिंग्स में बहुत सारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिया जाता है, ठीक है, जहां पर क्लाइंट्स को समझाया जाता है जो आपके प्रोग्राम्स के बारे में, आपके शेड्यूल के बारे में, आपके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ऑफिस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंटेशंस दिया जाता है। तो दैट प्रेजेंटेशंस कम्स अंडर फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है क्लासरूम लेक्चर्स। जो क्लासरूम में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के सामने लेक्चर्स देते हैं, पढ़ाते हैं, ये एक फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और एक और कम्युनिकेशंस क्या होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में? कमेंसमेंट ऑफ स्पीचेस गिवन एट ग्रेजुएशन सेरेमनी। जब आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हो, आपका जब फाइनल रिजल्ट निकल गया है, तब वहां पर जाके कुछ स्पीच देना होता है, या फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जब आपका अप्रेजल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए होगा, जब आपका अप्रेजल हुआ,
तो आपसे जब पूछा जाएगा, सरिता हुआ, जो भी है यहाँ पर, मधुस्मिता, प्रेरणा हुआ, कि आप लोग अपना सक्सेस में किसको ज्यादा ये करते हो, तो अब आप जब खुद बोलने के लिए जाओगे, उस चीज को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर एटिकेट्स, बिहेवियर, योर कटसी, ये सारा कुछ मिलावट होता है, मिल के जो होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कैजुअल रहता है। So these are the basic difference between informal communications and formal communication. Am I clear? Yes, sir. Okay. तो आप लोग का क्वेश्चंस कैसे आएगा? इसका क्वेश्चंस आप लोग का शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आ सकता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशंस, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। गिव एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशंस, तब आपको ये एग्जांपल्स देना पड़ेगा। ओके। आप लोग का सिलेबस आप लोग को मिला है? सिलेबस, यू गॉट द सिलेबस, एवरी वन ऑफ यू हैव Yes, द sir. सिलेबस विद मी? तो आप लोग का सिलेबस में देखिएगा, साइलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट, आप लोग के यूनिट 2 या फिर यूनिट 3 में साइलेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइलेंस। ओके। आप लोग कुछ बुक्स प्रेफर करते हो? आर यू प्रेफरिंग एनी बुक्स एंड ऑल? नो, No, ओनली sir. डिपेंड्स, ओनली डिपेंड्स ऑन नोट्स। Yes. मतलब आप लोग को उतना पास वक्त नहीं रहता है कि आप लोग बुक्स वगैरह थोड़ा सा स्टडीज करो। एम आई क्लियर? इज इट सो? No, sir. ऐसा बात नहीं है। अब कॉलेज पे जाकर लाइब्रेरी पे चेक करना होगा, यदि कोई बुक्स अवेलेबल रहेंगे तो जरूर लेके आएंगे और जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लीज थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि अपार्ट Yes. फ्रॉम मतलब आप लोग का मोटिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ नंबर लाना है क्या, पहले बताइए। हाँ, सर। क्योंकि नंबर से ये सर। जो, नहीं, देखो, मैं सरिता और प्रेरणा आप लोग दोनों को बता रहा हूँ, जो भी है यस, ये सर। पर क्लास में, ये जो आप लोग को सिलेबस मिला है ना, ये बहुत, मतलब फैक्ट्स, मतलब एकदम वास्तव सिलेबस मिला है। आप जितना इस चीज को, पढ़ाई के अलावा अपने आप में इस चीज को डेवलप करोगे ना, आप देखिएगा अपने लाइफ में उतना ही सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आप आप लोग पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वर्किंग प्रोफेशंस में तो डेफिनेटली जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वर्किंग प्रोफेशंस। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि चूल्हा चटका ही करना है, नौकरी तो करना ही है। पक्का यस, है ना? सर। एम्बिशन लाइफ में, इतना दूर पढ़ाई कर रहे हो, मतलब एम्बिशंस तो कुछ है, मैं आगे जाऊंगा, इतना पढ़ाई करूंगा, जॉब करूंगा, उसके बाद फिर वो सेकंड मेरा ऑप्शंस रहेगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? डिग्री हासिल करना। डिग्री तो कोई भी इंसान हासिल कर लेता है, दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट। नोट्स व्हाट्सअप करके, पीडीएफ करके, गूगल गूगल करके, या यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस, यू कैन गेट डाउन एंड स्टडीज फ्रॉम देयर आल्सो। बट द फैक्ट इज, आप जब उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने लाइफ में, उस चीज का यूटिलाइजेशन साफ नहीं करोगे अपने लाइफ में, उसका फायदा आप कैसे ले पाओगे? विल इट बी पॉसिबल फॉर यू? मुझे तो नहीं लगता हम ले पाओगे। तो ये जो आप लोग का कम्युनिकेशन, स्पेशली कम्युनिकेशन चैप्टर दिया गया है, और मैं सिलेबस देख रहा था, इतना जबरदस्त सिलेबस है आप लोगों का दिया गया है। सारा कुछ चीज, सैलरी निगोशिएशन, क्लाइंट के साथ कैसा करना चाहिए, क्लाइंट के साथ बातचीत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रेजेंटेशंस कैसे देना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस करना करना कैसे देना चाहिए, सीवी राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, ओके, कैसा देना चाहिए, लिखना कैसे चाहिए, हाउ टू राइट, रीडिंग स्किल, हाउ टू मेक योर राइटिंग स्किल अप्रोप्रिएट, ग्रुप डिस्कशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीडी राइट। मतलब आप लोग का, मतलब ये जो सिलेबस तैयार कर किया है ना, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छी नौकरी के लिए आप लोग अग्रसर हो जाए। ये सैलरी, मतलब ये जो सिलेबस आप लोग को दिया गया है, मुझे लगता है नौकरी स्किल, मतलब स्किल ओरिएंटेड बेस्ड सिलेबस है आप लोग का। अगर इस चीज का फायदा उठाना चाहते हो, सरिता, प्रेरणा एंड मधुस्मिता, ज्वाइनिंग, आप लोग इस चीज पे प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैं सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप भी अपने में कम्युनिकेट थोड़ा सा कीजिए, बातचीत कीजिए, ईदर इन इंग्लिश एंड आइदर इन हिंदी। बिकॉज मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फैकल्टीज नहीं हूँ, मैं एक, आई कैन आई कैन वन थिंग आई से, मैं कॉर्पोरेट प्लेसमेंट ये भी हूँ। जितने भी कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स वगैरह होता है, आई एम लुकिंग आफ्टर दैट आल्सो, आई एम द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। सो आई नो समथिंग वेरी
what you can say, I know something very good and also I know something very bad about the placements. How the placement thing is going on, कितना इन लोगों का कैसे निगोशिएट करना होता है, क्या इन लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, स्टूडेंट को किस बेसिस पे ये लोग सिलेक्शन करता है, रिज्यूमे राइटिंग ये लोग कैसे देखता है, क्या क्या चीज ये लोग देखता है, ईच एंड एवरीथिंग। यार बगल में बैठ के लोग का एचआर को देखता हूँ। एक क्लाइंट, एक स्टूडेंट जब आता है, इंटरव्यू देता है, बैठता है, बाहर चला जाता है, उसके बाद जो भी बातचीत होता है स्टूडेंट के रिलेटेड, मैं सुनते रहता हूँ। और सरिता, प्रेरणा एंड ऑल, आप लोग एक चीज देख के गौर कीजिएगा। अब पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं, अभी तो आप लोग इंटरव्यू में नहीं बैठे होंगे। एक डस्टबिन बना हुआ रहता है, कार्टून बॉक्स जो होता है ना, ब्रिटेनिया बिस्किट का या तेल का या कोई भी एक यस कार्टून बॉक्स आप लोग जानते हो ना, दुकान में जो मिलता है। दो कार्टून बॉक्स लेके एक कार्टून बॉक्स लेके बैठा जाता है। देखिएगा, एचआर के बगल में रखा, आप लोग नहीं देखे होंगे, उतना आप लोग गौर नहीं करते होंगे। जितने भी, मतलब क्या मैं बोलूं आप लोगों को, आप लोग चौंक जाइएगा। जितने भी एचआर्स वहां आते हैं और जितने भी रिज्यूमे आप डालते हो वहां, अगर रिज्यूमे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, मतलब जो चीज उनको चाहिए आपने उस चीज को मेंशन नहीं किया, वो रिज्यूमे उठा के उस पेटी में डाल देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका रिज्यूमे सिलेक्टेड नहीं हुआ है, कैंसिल हो गया है। कोई भी मार्क, आजकल तो पेन यूज ही नहीं करते वो लोग, they are not using any pen on your resume. Simply, they will look after your resume, they will check your resume, and if they feel that your resume is okay, then they will keep it aside. और आपको उसको उनको का लगता है कि आपका रेज्यूमे ठीक नहीं है, आप जो भी देना चाहिए वो उसमें मेंशन नहीं किया, वो सिंपल उठा के वो कार्टून बॉक्स में डाल दो। ठीक है, मतलब इतना नजदीक से लोगों के साथ बैठ के मैंने ये सब चीज ऑब्जर्व किया है कि एक स्टूडेंट मेहनत से बनाता है, लेकिन कुछ कुछ बारीक वजह से, कुछ कुछ गलतियों की वजह से वो आपका रिज्यूमे, यू आर नॉट, द रिज्यूमे इज नॉट गेट सिलेक्टेड एंड दे हैड बीन जस्ट पुट ऑन द कार्टून बॉक्स, वो बॉक्स में डाल देते हैं और उसके बाद जाके वो रद्दी वाले को बेच देते हैं। कॉलेज वाला जो होता है, कैंपस प्लेसमेंट जो बेसिकली होता है, वो रद्दी वाले जाको बेच देते हैं। दीज आर द थिंग्स हैपन। ओके, तो ये जो आप लोग को कॉलेज जो आप लोग को ये सिलेबस दिया है ना, ये एकदम स्किल ओरिएंटेड बेस्ड सिलेबस है। आप जितना इस चीज पे वर्क करोगे, उतना ही आपका फ्यूचर जो आगे है वो चीज आपको, मतलब आगे लेके जाएगा। ठीक है, देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सरिता, प्रेरणा एंड ऑल, ये जो सर्टिफिकेट आप करो लोगे ना, ये सर्टिफिकेट जो आपका मिलेगा, आपका ये सर्टिफिकेट इट विल गोइंग टू वर्क एज ए गेट पास। जैसे आप लोग को होता है ना, आप लोग जब कंपनीज में जाते हो, आप लोगों का आई कार्ड बना हुआ रहता है, ये जो सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो, ये आपका आई कार्ड में काम आएगा। आई कार्ड, आप इतना क्वालिफाइड हो, आइए आपको इस कंपनी में एंट्री मिल गया। उसके बाद वो सर्टिफिकेट सिर्फ घर में टांगने के अलावा और अलमारी में पड़े हुए रहने के अलावा और कोई काम में नहीं देगा। देयर इज नो अदर वर्क फॉर दैट, देयर इज नो अदर वर्क ऑफ योर सर्टिफिकेट विल गोइंग टू रिमेन। आपका एथिक्स, आपका मोरालिटी, आपका एटिकेट्स, आपका हार्ड स्किल, आपका सॉफ्ट स्किल एंड योर कम्युनिकेशन स्किल, ये 6 चीज आपको आगे लेके जाएगा। आप इस कंपनी में कैसे सरवाइव करोगे 5 साल में, 5-6 साल आप टिकोगे कि नहीं, ये आपका, ये सारा चीज आपको बताएगा। एम आई क्लियर? ये फैक्ट है, मैं आपको बता यस रहा सर। हूँ। These all the certificates which you are getting ना, this all certificate will work as a gate pass. जैसे कोई कंपनी में घुसने के लिए, अंदर जाने के लिए गेट पास की जरूरत होता है, ये सर्टिफिकेट विल वर्क एज अ गेट पास। आज से 5 साल के बाद या 3 साल के बाद, कितना साल आप लोग पढ़ोगे मुझे नहीं लगता, और ज्यादा से ज्यादा एमबीए एमसीए कर रहे हो आप लोग, जो भी कर रहे हो, मतलब क्या मास्टर्स आप लोग डिग्री ले रहे हो, इसके बाद क्या करना है, थोड़ी पीएचडी आप लोग करोगे, आई डोंट थिंक सो। तो आप लोग फिर क्या होगा, सर्टिफिकेट जैसे ही कोई कंपनी में आप चल जाओगे, वो सर्टिफिकेट का काम हो गया, अलमारी में रख दो। इसके बाद आपका जितना एक्सपीरियंसेस होगा, आपका रिज्यूम में जितना एक्सपीरियंस ऐड होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा और आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वही आपको आगे लेके जाएगा। तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो आपको दिया गया है, आई वाज रियली वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस सिलेबस, कि इतना स्किल ओरिएंटेड सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया गया है कि आप अगर इस चीज को अपने जीवन में, जिंदगी में उतार लेते हो प्रैक्टिकली, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली योर कम्युनिकेशन, कहा जाता है इफ योर कम्युनिकेशन स्किल इज
60-65. If your communication skill is good, either in Hindi or in English, then 70% chances are there to get a good job. Today, the world is getting this world is getting what you can say, get into the era of artificial intelligence, where you need to have a clients of foreign customers. You need to deal with your foreign customers. आजकल कॉलेजेस में अभी लैंग्वेजेस लैब कहा रखा गया है, जिसमें अमेरिकन एक्सेंट्स, ब्रिटिश एक्सेंट्स में स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। छोटा मोटा कंपनीज तो कॉलेजेस में आते नहीं है, अच्छा रिप्यूटेड कंपनीज जो फर्स्ट आवर में आते हैं वो अच्छे रिप्यूटेड कंपनीज में आते हैं। तो आपको फॉरेन क्लाइंट से डील करना होता है, तो आपका कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, तो गुड क्लैरिटी, आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका जबरदस्त होगा। इज इट क्लियर? सो सरिता एंड ऑल, आप इस चीज को गौर जोड़ दो, ठीक है? आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दो, अच्छे से अच्छे क्लासेस करो, पढ़ाई अच्छे से अच्छे करो, और इस चीज को ना प्रैक्टिकली आप इस चीज को पढ़ो, आप प्रैक्टिकली करो। जब मैं बात कर रहा हूँ या फिर और भी जो भी स्टूडेंट्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, जरूरत नहीं है आप क्वेश्चंस पूछो, इंग्लिश में पूछो चाहे हिंदी में पूछो, लेकिन बातचीत कम्युनिकेट करते रहो। इससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आपका वॉइस कितना अच्छा है, क्लैरिटी कितना अच्छा है, आप कितना बैलेंसिंग वे में बोलते हो ईच एंड एवरी थिंग्स। ये आपके लिए अच्छा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि इस क्लास, यहां से मेरे क्लास खत्म हो जाने के बाद शायद मुझे नहीं लगता आपका रिवीजन और कहीं पर जाके आप इससे अच्छी तरह से रिवीजन कर पाओगे। आई डोंट थिंक सो। एम आई क्लियर? यस सर। प्रेरणा क्या सो गई है क्या? आर यू लिसनिंग टू मी प्रेरणा? मुझे तो नहीं लगता, प्रेरणा गई, वो क्लास अटेंड करके सो गई।